اردو ایک طرز حیات کا نام ہے، اردو ایک طرز زندگی ہے، اردو ہندوستان کا دل ہے، اردو ہندوستان کی جان ہے۔ کا جشن ہے، اردو کا جشن ہے، محبت کا جشن ہے، تو آئیے ہم بھی آپ کے ساتھ جشن مناتے ہیں، کتابیں بھی خریدتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، موسیقی بھی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اردو مر رہی ہے یہ ریٹ لگانا چھوڑتے ہیں۔ اردو مر نہیں رہی ہے، اردو زندہ، دیکھیے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ میر کی غربت ہے، غالب کی غریبی ہے، پریم چندر کا بھوکا مرنا ہے، قرض داری ہے ان کی، اس کے بعد بھلے ہی آج چیزیں کچھ اور ہوں مگر اس سب کے لیے وہ لوگوں کا ایک بہت بڑا اس میں یوگدان ہے۔ اور میں جاوید صاحب کو سننے آتا ہوں، بیسیکلی مجھے سب سے زیادہ وہی پسند ہے۔ ہم سنجیو سردار صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اردو کی ایک شاندار محفل آباد کی۔ Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. دوستو اس وقت میں موجود ہوں جشن ریختہ میں۔ بھلے ہی اس بات کی شکایت کی جائے کہ اردو زبان اب ختم ہوتی جا رہی ہے، بھلے ہی اس بات کی شکایت کی جائے کہ اردو کے رسالے اب بند ہو رہے ہیں، بھلے ہی اس بات کی شکایت کی جائے کہ اردو کے اخبارات اب بند ہوتے جا رہے ہیں، اب واقعی میں اردو ہندوستان میں اب دھیرے دھیرے ختم ہونے کے کگار پہ ہے۔ جو لوگ اردو کے پروفیسر ہیں یا پھر جن یونیورسٹیوں میں اردو کی تعلیم ہوتی ہے وہاں تو اردو ہے، لیکن خود مسلمانوں کے گھروں میں بھی اب اردو نہیں ہے۔ اب خود اپنے گھر میں غور کیجئے، اپنے آپ پہ غور کیجئے، کیا آپ کو اردو آتی ہے؟ آپ اپنے بچوں سے پوچھئے ان کو اردو آتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھئے ان میں کتنے لوگوں کو اردو آتی ہے۔ ریختہ جیسے فاؤنڈیشن نے سنجیو سراف جیسے لوگوں نے یہ ٹھانی اور انہوں نے اردو کو فروغ دینا شروع کیا۔ اردو کے نام پہ پروگرام بہت ہائی لیول کا ہو رہا ہے، واقعی میں ہونا بھی چاہیے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر محنت کی جائے، ایمانداری سے کام کیا جائے تو اردو کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اردو کو بہت ہی مشہور کیا جا سکتا ہے، لیکن اردو کو جو پروموشن زبان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے۔ خود میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، پیچھے دکھائیے، لکھا ہوا ہے دیار اظہار۔ دیار اظہار تو لکھا ہوا ہے لیکن دیار اظہار اردو میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی سر، میں لکھنؤ قریب جگہ مغنات بھنجن ہے، وہاں سے آیا ہوں۔ ایک بہت کمال کی بات ہے کہ خود اردو والوں نے بہت برا کیا اردو کے ساتھ، اردو کے اخبار بند ہو رہے ہیں، اردو کے رسالے بند ہو رہے ہیں، مسلمان بچہ اردو نہیں پڑھتا جبکہ اردو مسلمانوں کی لینگویج نے سب کی ہے، لیکن پھر بھی ریختہ والوں نے ایک کمال کی بات کی ہے کہ سب میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم دل سے چاہو اردو کے نام پہ اتنا بڑا ایونٹ بھی کر سکتے ہو اور 10,000 روپے کی ٹکٹ لے کے بھی لوگ پروگرام میں آ سکتے ہیں۔ اردو ایک طرز حیات کا نام ہے، اردو ایک طرز زندگی ہے، اردو ہندوستان کا دل ہے، اردو ہندوستان کی جان ہے۔ اردو اور ہندو دونوں بہن اور بیٹیاں ہیں، دونوں ماں اور سگی بیٹیوں کا ایک رشتہ ہے، اس لیے سنجیو سردار صاحب کا مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اردو کو بالکل ہائی لیول پر اور لگژری لائف تک اور ان تک جو اردو کی لپی تک نہیں جانتے، رسم الخط سے آگاہ نہیں ہے، لیکن اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سنجیو سردار صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اردو کو اس اسٹائل سے، اس طرز سے اور اس طریقے سے متعارف کرایا ہے کہ فلمی دنیا سے بھی آگے طور پر انہوں نے متعارف کرا دیا اور وہاں تک اردو کو پہنچا دیا، اردو دلوں تک پہنچ گئی۔ اور آپ دیکھیے یہ اردو کا ایک جہان آباد ہے جو رسم الخط سے واقف نہیں ہے لیکن اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سنجیو سردار صاحب کو مثبت طور سے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیوناگری میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ دیوناگری کے ساتھ ساتھ اردو رسم الخط نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ دیار اظہار آئندہ کے پروگرام میں ہم سنجیو سردار تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ اردو کے رسم الخط کو، اردو لیپی کو اس کے جائز حقوق دیے جائیں، اور پورے اگر اردو اپنے لباس میں نہیں ہے اور اردو اگر اپنے اتوار میں نہیں ہے، اپنے لباس میں نہیں ہے تو بے لباس ہے۔ اردو رسم الخط، فارسی اس کا جو رسم الخط ہے وہی اس کا لباس ہے، اس کے لباس کو اتار دیا
दिया जाए, उसको देवनागरी में कर दिया जाए, तो देवनागरी में करने के लिए आप उर्दू को वहां तक तो पहुंचा सकते हैं जो लोग उर्दू की लिपि से वाकिफ नहीं है, लेकिन उर्दू के लिबास को लिबास के साथ पहुंचाइए, ताजमहल को ताजमहल के साथ पहुंचाइए, लाल किले को लाल किले के साथ पहुंचाइए। हम संजीव सर्राफ साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने उर्दू की एक शानदार महफिल आबाद की, और आइंदा हम उर्दू वालों से गुजारिश करते हैं जो इसको मनफी पहलू से लेते हैं, वो इससे बड़ा प्रोग्राम कराएं जहां उर्दू रस्मुल खत उर्दू लिबास के साथ आरास्ता और पैरास्ता हो। शुक्रिया। मैं जनाब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उर्दू का अगर मुशायरा कहीं पे होता है या उर्दू के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आदमी 50 रुपए की टिकट लेके भी नहीं जाता है, नहीं जाना चाहता है, लेकिन संजीव सराफ साहब ने आखिर ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि लोग 10,000 हजार रुपए की टिकट लेके यहाँ पे आ रहे हैं। संजीव सर्राफ साहब सोने के आदमी हैं, सोनार हैं, उन्होंने सोने की कीमत को और उर्दू की कीमत को एक कर दिया है और बताया है कि उर्दू मुफ्त की जबान नहीं है, उर्दू मुफ्त खोरों की जबान नहीं है, उर्दू लाल बुजक्कड़ों की जबान नहीं है, उर्दू लग्जरी ऊंची सोसाइटी की भी जबान उर्दू है, मुगलों की जबान उर्दू है, शाही दरबार की जबान उर्दू है, लश्करी जबान उर्दू है, और उर्दू मजदूरों से लेकर मजबूरों से लेकर शाहों से लेकर शहजादों से लेकर बादशाहों की जबान उर्दू है। संजीव सराफ साहब ने वाकई में कमाल कर दिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उर्दू को हमेशा हम गरीब जैसे ही समझते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू को जितनी मकबूलियत होनी चाहिए, आज भी स्टेशन पे नाम गलत लिखा हुआ रहता है, आज भी मुसलमान का बच्चा उर्दू नहीं पढ़ता है, आज भी उर्दू के प्रोफेसर अपने घर में उर्दू अखबार या रिसाले नहीं मंगाते, सैलरी तो उर्दू के नाम पे ले रहे हैं। तो आखिर उर्दू को जो मकबूलियत मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है, ये काम लोग क्यों नहीं कर सके। शिबली साहब, उर्दू के हवाले से 50 सवाल आपने पूछ दिए। मेरा मानना यह है कि मैं तो लिखता रहता हूँ, आपको मालूम है, पढ़ता हूँ, जो रेलवे स्टेशन पे गलत नाम लिखने, बाकी जगह लिखने, उर्दू का अखबार और रसाइल के जो मसाइल है उस पे क्यों नहीं किसी और दिन बात करें। ये जश्न रेख्ता है। पहली बात आपने कहा संजीव सराफ साहब ने बड़ा काम किया। देखिए इतनी बड़ी भीड़ है, इतने आशिकाने उर्दू हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, सब पहुंचे हैं। जश्न उर्दू का आज तीसरा दिन है और अब तो ये बहुत ही मकबूल हो चुका है ये जश्न, इसमें सब लोग आते हैं और उर्दू का जश्न मनाते हैं। यहाँ भी आप जैसे सामने अगर आपका कैमरामैन दिखाएंगे तो ये दयारे इजहार लिखा हुआ है, बड़े हरूफ में लिखा हुआ, अंग्रेजी में, रोमन में लिखा हुआ है। तो अभी कोई साहब शिकायत कर रहे थे कि हर जगह हमको 80-90, उन्होंने परसेंटेज कहाँ से निकाला मुझे नहीं मालूम, कि 80-90% जगहों पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रोमन में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा क्या आपको एतराज है? कहने लगे नहीं, मुझे एतराज नहीं है, मैं चाहता हूं कि जहां रोमन में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है, ये जश्न रेख्ता है, तो यहाँ भी उर्दू रस्मुल खत में लिखा रहे। तो एक रस्मुल खत की शिकायत ऐसा मैंने सुनने में आया, यही टहलते होना चाहिए ना, अगर इसमें है तो उसमें भी रहना चाहिए। उसमें भी होना चाहिए, तो उस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। अगर मुझे लगता है संजीव सराफ साहब तक ये बात पहुंचती है, लोग पहुंचाते हैं, तो वो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, वो बड़े ज़हीन आदमी हैं और कोई इससे मना नहीं किया जा रहा है। उर्दू में के साथ साथ अंग्रेजी में, हिंदी में, दूसरी जबानों में भी लिखा रहे, लेकिन उर्दू का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, उर्दू में भी नजर आए, पहली बात। और जो दूसरी बातें आपने की है, अखबारात का मसला, सिकड़ने का मसला, गलत लिखने का मसला, वो तो रोजमर्रा के मसाइल हैं और उस पर अलग से बातें होती हैं। अभी तो जश्न है और एकता का जश्न है, उर्दू का जश्न है, मोहब्बत का जश्न है, तो आइए हम भी आपके साथ जश्न मनाते हैं, किताबें भी खरीदते हैं और कुछ खाते पीते भी हैं, मौसीकी भी से भी लुत्फानंदोज होते हैं। और उर्दू मर रही है ये रेट लगाना छोड़ते हैं, उर्दू मर नहीं रही है, उर्दू जिंदा, देखिए हजारों लोगों के दिलों में जिंदा है। एक और बात बता दूं, जो कभी कभी मजहब का एक लेवल लगाया जाता है ना जबान पे, उसको बंद कर देना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए। यहाँ भी आप जो देखेंगे तो ये हमारे जो अहले वतन आए हुए हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये एक खास किसी मजहब के, किसी कौम के और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग हैं। अभी मुझे कुछ लोग मिले जो मुंबई से फ्लाइट लेकर के आए थे, अभी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो जाने के लिए परेशान है, इन दिनों चल रहा है मसला, लेकिन वो बाकायदा उसके लिए होटल में आके ठहरे हैं और जश्न रेख्ता आने के लिए। तो उर्दू का जश्न है और मुंबई से नहीं आए लोग, दुबई से, बहुत बहुत दूर दूर से आए हैं। देखिए भोपाल से भी कुछ लोग आए, बल्कि भोपाल से तो कुछ बड़े खूबसूरत लोग भी आए हैं, शेरवानी पहन के आए हैं भोपाल से, तो भोपाल वाले भी आ जाते हैं। मेरा नाम विप्लव है। विप्लव जी, यस। आपको रेख्ता में आना क्यों पसंद है? हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ के, मेरे को लगता है कि मैं खुद से मिल पाता हूँ। हाँ, और मुझे यहाँ के लगता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी और के साथ आते हैं बस खुद से मिलने, इसीलिए। और मैं जावेद साहब को सुनने आता हूँ, बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा वही पसंद है, जावेद साहब। और आज वो उनके साथ एक बहुत अच्छे वो गायक भी आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, शंकर महादेवन जी, तो इसीलिए। हाँ, और हर बार कोई ना कोई मेरा रीजन होता है। पिछली बार रेखा भारद्वाज जी आई थी, जावेद साहब भी आए थे, इस बार भी जावेद साहब आए हैं,
और उनके साथ शंकर महादेवन जी हैं। हाँ, अच्छा, आप सिर्फ जो म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, जो फिल्मी दुनिया के लोग आते हैं, उनको सुनने आते हैं कि आपको उर्दू के अल्फाज से, उर्दू से इस तरह की मोहब्बत भी है, आपको लगता है कि यार उर्दू वाकई में अच्छी जबान है, बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में? बिल्कुल उर्दू सब, हाँ मैं उर्दू सबसे बड़ा कारण है मेरे यहाँ आने का। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ आके मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, ऐसा तो उर्दू ही कारण है, और हाँ हिंदी भी कारण है। कहाँ से आए आप? अमरोहा बच रही हूँ, एक कस्बा पड़ता है अमरोहा में, वहां से मैं आया हूँ। तो रेख्ता के इवेंट पहले भी आते रहे, पहली बार आए? मैं तो काफी टाइम से आ रहा हूँ, बल्कि फॉलो कर रहा हूँ रेख्ता को और आता रहता हूँ। क्या खास बात लगती है इसमें? खास बात इसमें ये लगती है कि जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे वो ना के बराबर हो गए थे धीरे धीरे उन्हें, बट इन्होंने उसको जिंदा किया है। खाली एक जबान ही नहीं, मतलब एक इन्होंने, जैसे ये साहब स्टेज देख ले सामने सुखनजार और उधर महफिल खाना, तो इसमें उर्दू से वाबस्तगी बनी रहेगी, भले ही वो इंग्लिश में पढ़ के बनी रहे। ये चीज एक रेख्ता से जो है प्लस पॉइंट ऐड हुआ है, जो आपकी नई जनरेशन के साथ हुआ है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से नए नए शायर निकल के आ रहे हैं। आपने महफिल खाना देखा और यंग पोएट वो शायर देखा, जगह जगह लड़के अपनी नशिस्तें कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं उसमें। तो ये इसी का ज़हूरा है संजीव सराफ साहब का और रेख्ता का, जो ये चीजें आज हो रही हैं। बट इसके पीछे भी एक चीज है जो जिनकी वजहों से ये चीजें हो रही हैं, जिसके पीछे मीर की गुर्बत है, गालिब की गरीबी है, प्रेमचंद्र का भूखा मरना है, कर्जदारी है इनकी। उसके बाद भले ही आज चीजें कुछ और हों, मगर उस सब के लिए वो लोगों का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। संजीव सराफ साहब ने, जो रेख्ता के मालिक है, उन्होंने उर्दू को इस अंदाज में पेश किया है, वाकई में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो लोग अपने आप को अब तक उर्दू का ठेकेदार कहते थे, वो सिर्फ मुशायरा करते रह गए, मामूली लेवल का बिरयानी खाते रह गए, खुरमा खाते रह गए, लेकिन ना तो उर्दू अखबारात तरक्की कर पाए, ना ही उर्दू के रसाले तरक्की कर पाए। अफसोस की बात यह है कि धीरे धीरे उर्दू के अखबारात भी बंद होते जा रहे हैं, उर्दू के रसाले भी बंद हो जा रहे हैं। इसके बावजूद संजीव सराफ साहब ने सोचे कितना कमाल का काम किया है, उसी उर्दू को उन्होंने इतने स्टैंडर्ड तरीके से पेश किया कि आज उनके इस इवेंट में लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार के टिकट लेकर आते हैं और एंजॉय करते हैं।